So today we will start with the admissions. I just want to reiterate that I hope you have read section 17 to 21, section 31 and 58, because all of these sections will be working together. So while I'm explaining the nuances, you must keep in your mind that I am explaining these sections together. Alright? And it is very important that you grasp the essence of admissions, because it will be relevant for the purpose of understanding confessions. Because what is a confession? It is a subspecies of statement. Statement is the genus, admission is a species, and confession is a subspecies. Alright, keep that in mind. So just let me recapitulate some of the locus classicus points on admissions. There's a case of Supreme Court named Bishwanath Prasad versus Dwarka Prasad, decided on 30th October 1973. Now here the Supreme Court says that the admissions are substantive evidence by themselves in view of section 17 and 21 of the Indian Evidence Act, though they are not conclusive proof of the matter admitted. We are of the opinion that the admissions duly proved are admissible evidence irrespective of whether the party making them appeared in a witness box or not, and whether the party, when appeared as a witness, was confronted with those statements in the case the statement was contrary to the admissions. The purpose of contradicting a witness under section 145 of the Indian Evidence Act is very much different from the purpose of proving the admission. Admission is a substantive evidence of the fact admitted, while previous statement used to contradict a witness does not become a substantive evidence, but merely serves the purpose of throwing doubt on the veracity of the witness. या दूसरे शब्दों में it can be used to determine the credibility of the witness. What weight is to be attached to an admission made by a party is a matter different from its use as an admissible evidence. तो आपको एक चीज़ याद कर लेनी चाहिए कि जो एडमिशंस हैं वो सब्सटेंशियल एविडेंस होते हैं बाय देमसेल्व्स व्हेन यू रीड सेक्शन 17 and it fulfills the requirement of section 21, etc. Alright, all the allied sections of the admissions are to be read together. Even though they are not conclusive proof, they are still duly admissible irrespective of the fact whether the party making them appeared in a witness box or not, and whether the party, when appeared as a witness, was confronted with those statements or not. You know why the Supreme Court is saying that? Because the objection is taken that until cross-examination has been done, till that time the admissions cannot be admitted. Now these positions of law has been rejected by the Supreme Court. Supreme Court has said that admissions are duly admissible if it is fulfilling the requirement of section 17 to 21, and even though they are not conclusive proof, they would be admissible irrespective of the fact whether the party making them appeared in the witness box or not, and whether the party, when appeared as a witness, was confronted with those statements or not. क्योंकि 145 of the Indian Evidence Act में एक requirement होती है कि before you intend to contradict a witness, you need to make him recall his earlier statements and then contradict him. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है. तो अभी 145 को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि दैट इज़ नॉट रेलिवेंट टू द पॉइंट राइट नाउ. आगे चल के रेलिवेंट होगा. तो बेसिकली ये समझिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है. सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 145 का यूज़ होता है फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग अ विटनेस, और वो कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप में सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता. दैट मेयरली सर्व्स फॉर द पर्पस ऑफ थ्रोइंग डाउट ऑन द वेरासिटी ऑफ द विटनेस. लेकिन एडमिशंस जो रिक्वायरमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट की फुलफिल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 17, 18, 19, 20, 21, 31 एसेट्रा, वो सब्सटेंशियल एविडेंस हैं एंड आर एडमिसिबल इन एविडेंस बाय देमसेल्व्स. ठीक है, इस बात को लेके अवेयर रहिएगा. अब इस पे आप दो केस कोट कर सकते हैं. आप चाहे तो भगत सिंह वर्सेस भागीरथी भी कोट कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये पोजीशन ऑफ लॉ हेल्ड हुई है, या विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद का भी केस कोट कर सकते हैं. ये दोनों ही केस लोकस क्लासिकस है. ऐसे अभी मैं बताता हूँ कि विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारिका प्रसाद में किस कॉन्टेक्स्ट में बोला. सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली बोला था, देयर इज़ नो मेरिट इन द कंटेंशन दैट द स्टेटमेंट्स गिवन इन एग्जिबिट्स जी एसेट्रा जो एग्जिबिट प्रोड्यूस किए थे हैज़ नॉट बीन पुट फर्स्ट टू द प्लेंटिव when he was in witness box or to the eighth defendant, although he has been discreetly kept away from giving evidence, and then they cannot be used against him. ये contention advocate ने उठाया था कि
ये जो जितने भी एडमिशन जो एग्जिबिट्स में कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए गए हैं ये तो विटनेस से कन्फ्रंट ही नहीं कराए गए, तो उन्हें एडमिट नहीं करना चाहिए। और उसके पर्पस से काउंसिल ने सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की तरफ अटेंशन ड्रॉ किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देयर इज अ कार्डिनल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पार्टी हु इज ऑथर ऑफ अ प्रायर स्टेटमेंट एंड अ विटनेस हु इज एग्जामिन्ड and is sought to be discredited by the use of prior statement. In the former case, an admission by a party is a substantive evidence if it fulfills the requirement of section 21 of the Indian Evidence Act, and in the latter case, prior statement is used to discredit the credibility of the witness and it does not become substantive evidence. 145 का purpose होता है to discredit the witness or to determine his veracity. उसका वो अपने आप में substantive evidence नहीं होता, पर admission substantive evidence होते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है इन द फॉर्मर केस देर इज नो नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग एडमिशंस हैविंग टू बी पुट टू पार्टी बिकॉज इट इज द एविडेंस प्रोपियो विगोरे। यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? इट मीन्स बाय इट्स ओन फोर्स। अब मैं आ जाता हूँ भरत सिंह वर्सेस भागीरथी पे। उसमें भी सेम पोजीशन ऑफ लॉ होल्ड की। उसमें भागीरथी का एडमिशन कहाँ पे था? भागीरथी का एडमिशन उस केस में एक कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट में था, और कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट में जितने भी टर्म्स थे कोर्ट ने उसको वो मान लिया था, क्या कहते हैं, एडमिशन्स मान लिए थे। और फिर जब कोर्ट के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन भागीरथी ने देनी चाहिए तो उसने एक बहुत ही लूज सी एक्सप्लेनेशन दी कि शी वॉज नॉट अवेयर कि फैमिली में पार्टीशन हो गया है या ब्रदर सेपरेट हो गए, क्योंकि ये पार्टीशन केस था। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भरत सिंह और भागीरथी में टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस में एडमिशन्स जो एग्रीमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट में थे, जो कोर्ट को सबमिट किए गए थे, वो सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने पाया कि दीज अमाउंट टू एडमिशन्स। और फिर जो ऑब्जेक्शन उठाया गया था हमेशा की तरह कि अरे प्रीवियस स्टेटमेंट से पहले तो उनको कन्फ्रंट करना चाहिए तभी जाके एडमिसिबल होंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी मैंने आपको उसकी रीजनिंग बता दी कि क्यों रिजेक्ट होते हैं ऐसे। वैसे ही एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए किसी प्लेंटिफ ने या किसी भी पार्टी ने किसी पुराने सूट में अपनी प्लीडिंग्स में कुछ एडमिशन्स किए हैं, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट्स रिलाई किए जा सकते हैं सब्सिक्वेंट सूट में, ये बात याद रखिएगा। जैसे इस केस पे भी एक वही वाला केस अथॉरिटी है विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारिका प्रसाद। उसमें अगर मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि जब प्लेंटिफ एक सूट फाइल करता है तो एक प्लेंट पहले होती है ना, प्लेंट को वेरीफाई करता है। अब मान लीजिए उस प्लेंट में उसने कुछ एडमिशन्स किए हैं, तो वो जो प्लेंट है उसमें जो एडमिशन्स हैं वो मान लीजिए कोई दूसरा केस होता है जिसमें वो प्लेंट के एडमिशन्स हो सकता है रेलेवेंट हो किसी पार्टी के लिए, तो वो स्टेटमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं उस दूसरे सूट में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे प्लेंटिफ ये नहीं कह सकता बाद में कि मुझे पहले प्रीवियस स्टेटमेंट से कन्फ्रंट नहीं किया तो वो एडमिसिबल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ सेक्शन 145। तो कोर्ट फिर मना कर देगा कि नहीं, ये ऑब्जेक्शन नहीं मेड किया जा सकता बिकॉज यू आर द ऑथर ऑफ दैट स्टेटमेंट। और ऑथर ऑफ दैट स्टेटमेंट को जिसने अपने फुल सेंसेस में एक फैक्ट एडमिट किया है, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट अंडर लॉ for admissions to be admitted that first the maker of those admissions should be confronted with his earlier statement। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एडमिशन्स के लेके, ध्यान रखिए, वर्ड्स पे गौर करिएगा। ऐसी रिक्वायरमेंट एडमिशन्स को लेके नहीं है, क्योंकि सेक्शन 17 to 21, 31, सेक्शन 58 जब आप टुगेदर पढ़ते हैं then you come to know that the admissions are substantive evidences by its own force। You have to remember that, ठीक है। तो दो केस आपको मैं बताता हूँ लोकस क्लासिकस में, भरत सिंह वर्सेस भागीरथी और विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारिका प्रसाद। एक और केस है जो लोकस क्लासिकस है इस पॉइंट पे, वो है नागिन दास रामदास वर्सेस दलपत राम। अब इसका मैं थोड़ा बता चुका हूँ, मैं फिर एक बार रिटरेट कर देता हूँ। इसमें एडमिशन्स को लेके बात बोली गई थी, और क्या बोली गई थी, इस केस में भी जो एडमिशन्स थे ना वो कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट में थे जो कोर्ट को सबमिट किया गया था। और सवाल ये था कि कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट में क्या एडमिशन रिलाई किए जा सकते हैं, तो कोर्ट ने बोला ऑफ कोर्स, और फिर पोजीशन ऑफ लॉ रिटरेट की, एडमिशन्स इन प्लीडिंग्स और जुडिशियल एडमिशन्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट
made by the parties or their agent at or before hearing of the case stand on a higher footing than evidentiary admissions. The former, matlab judicial admissions, are a class of admissions which are fully binding on the party that makes them constitute a waiver of proof. They by themselves can be made the foundation of rights of the parties. On the other hand, evidentiary admissions which are receivable at the trial as evidence are by themselves not conclusive. They can be shown to be wrong. अब आपको ऑर्डर 12 सीपीसी के रूल 6 का भी ध्यान रखना होगा कि कभी कभी अगर कोर्ट को लगता है कि एडमिशंस आर सफिशिएंट टू गिव जजमेंट, तो ऑर्डर 12 को रूल 6 परमिट करता है कोर्ट को कि वो एडमिशंस के बेसिस पे जजमेंट देते। अब एडमिशंस को लेके एक चीज़ याद रखिएगा, एडमिशंस का मतलब ये मत समझिएगा कि कटघरे में आके ही कोई चीज़ एडमिट करनी होती है। नो, एडमिशन कई तरीके से हो सकते हैं। एडमिशंस आपको प्लेंट में मिल सकते हैं, रिटन स्टेटमेंट में मिल सकते हैं, डिस्कवरी इंटरोगेटरी के थ्रू मिल सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में मिल सकते हैं, किसी अर्लियर स्टेटमेंट में मिल सकते हैं, या टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन से भी गैदर हो सकते हैं। तो एडमिशंस को कभी भी ना सिर्फ कोर्ट रूम के दायरे के अंदर मत समझिएगा, एडमिशंस उसके बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर एक पोजीशन बताता हूँ जो राम भरोसे शर्मा वर्सेस महंत स्वरूप में सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी कि एडमिशन ऑफ फैक्ट बाइंड कर सकता है पार्टी को, पर एडमिशन ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ बाइंड नहीं करता। तो लेट अस सपोज कोई पार्टी एक रॉन्ग पोजीशन ऑफ लॉ अज्यूम करके कोई एडमिशन कर ले। लेट अस सपोज पार्टी कोर्ट में आके बोले कि माय सूट इज़ बार्ड बाय लिमिटेशन। लेट अस सपोज, वैसे ऐसी कोई पार्टी बोलती नहीं, लेकिन इलस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इज़ अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर कोई डिस्प्यूट ना हो, मतलब फैक्ट्स इतने ज़्यादा इंटरवोवन ना हो उससे कि वो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट बन जाए। लेकिन समटाइम्स लिमिटेशन हैज़ अ टेंडेंसी टू बिकम अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड अदर टाइम्स व्हेन facts are so intertwined with the position of law that the party must find that when the time began to commence, then it becomes a mis question of law. तो मैं illustration दे रहा हूँ उस situation का जहाँ पे limitation is pure question of law. Let us suppose party आती है और वो admit करती है कि yes I do believe my case is barred by limitation during trial, लेकिन अब एविडेंस पे ये पता चलता है कि नो हिज सूट इज़ नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन। पार्टी ये सोच रही थी कि उसको सूट 2 साल के अंदर लाना है, पर लॉ ने उसको 3 साल तक का वक्त दिया है। तो क्या ऐसा एडमिशन वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, बाइंड करेगा पार्टी को जिसने वो स्टेटमेंट एडमिशन मेक किया है? द आंसर इज नो, बिकॉज दैट एडमिशन इज ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जजेस टू अप्लाई द करेक्ट लॉ। तो एडमिशन ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ तो मैटर करेंगे ही नहीं, लेकिन एडमिशन ऑफ फैक्ट विल सर्टेनली बाइंड द मेकर। एडमिशन ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ विल नॉट बाइंड द मेकर। ये एक लाइन का प्रिंसिपल है, याद कर लीजिएगा। अब इसमें इस केस में क्या हुआ था कि जो एग्जिबिट सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया था उसमें एग्जिस्टिंग जागीर लॉ को लेके एरोनियस इंटरप्रिटेशन किए गए थे, ठीक है। तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के पॉइंट में फॉल करते हैं और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो कोर्ट ने बोला कि पार्टी ने उस पर अगर गलत एरोनियस इंटरप्रिटेशन किया है, सो दैट विल नॉट बाइंड द मेकर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अ कोर्ट और एन एक्सपर्ट अथॉरिटी ऑन लॉ। सेकेंडली, एडमिशंस ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ डू नॉट बाइंड द पार्टी। अब एक केस बताता हूँ, शत्रु चरला विजय रामराजू वर्सेस निकम्मा जयराजू। अब इन्होंने अपने इलेक्शन पिटिशन में जो फॉर्म भरा जाता है उसमें अपने आप को एक शेड्यूल्ड ट्राइब से बताया दैट ही बिलोंग टू अ कोंडा डोरा ट्राइब। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इनके जितने भी डॉक्यूमेंट थे और इनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स थे, उन सब में इनकी जो कास्ट बताई गई थी वो थी क्षत्रिय, और इनके पैटर्नल अंकल का जो बेटा है वो भी क्षत्रिय है। तो कोर्ट ने बोला कि अगर आप कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय नहीं है, यू बिलोंग टू एन SC कोंडा डोरा ट्राइब, एंड ये जो बाकी जो फैक्ट्स हैं ये प्रूव कर रहे हैं कि और क्षत्रिय है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भैया आप पे लाइक करता है, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, दीज आर एडमिशंस एंड दैट टू अगेंस्ट यू। और फिर कोर्ट ने वही पोजीशन ऑफ लॉ रिटरेट की कि दो अ प्रायर स्टेटमेंट इफ इट्स इन द नेचर as an assertion in one's own interest may not be evidence, a prior statement adverse to one's interest may be evidence, would be evidence। सेक्शन 21 का प्रिंसिपल याद रखिएगा, ये सेक्शन 21 के कंटेक्स्ट में बात हो रही है
So therefore, in the present case where the appellant is pleading that he is a Konda Dora tribe member, the statement in the series of document pre-constitution and post-constitution executed by his ancestors and the members of his family, including himself, describing themselves as Kshatriyas, would operate as admissions against the interest of the appellant in the present case. These admissions also strengthen the admission of the appellant that in his school leaving certificate also he is described as a Kshatriya, and his paternal uncle's son is also described as a Kshatriya in his school leaving certificate, and that the uncle's son was also held to be a Kshatriya on an inquiry made in that behalf. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. अब आ जाता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग केस पे, वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोक्ष बिल्डर्स एंड फाइनेंसर्स लिमिटेड. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस एंड मैंने इसका काफ़ी अच्छा खासा एक्सर्प्ट आपके लिए रख रखा है, बिकॉज आई थिंक दिस केस एक्सप्लेन्स एडमिशंस इन अ वेरी गुड वे. अब इसमें एक क्वेश्चन था कि who was the real owner of the house, जो बेनामीदारी प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर है. वो ट्रू ओनर कौन है? वो इज़ द रियल ओनर ऑफ द हाउस फॉर वूम द डिफेंडेंट नंबर 2 वॉज अ बेनामीदार. कोर्ट को इस केस में इनकम टैक्स से रिलेटेड केस था, तो इसमें टैक्स इवेजन का भी इशू था और बाकी इश्यूज थे, पर यहाँ पे एडमिशंस बड़े रेलेवेंट हुए. और इस क्वेश्चन का आंसर कोर्ट ने कैसे पाया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए एडमिशंस ऑफ डिफेंडेंट नंबर 3 कंसिडरेशन में लिए गए थे, क्योंकि उसका डायरेक्ट बेयरिंग था ऑन द क्वेश्चन कि कौन रियल ओनर है उस बेनामीदार प्रॉपर्टी का. तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने एक एडमिशन किया गया था और फिर उसने बताया भी, और एडमिशन ये था, आई परचेज्ड 15 कीलिंग रोड ऑन 12 December 1946 for rupees 60,000 in the name of my son Major Kishan Lal. This money was paid out of my bank accounts and I have shown the details and payments from my bank passbook. ये एडमिशन था. अभी मैं इस पर और एलैबोरेट करूँगा. फिर यही जो एडमिशन मैंने अभी आपको बताया, उसी के साथ साथ एक कॉपी ऑफ पर्सनल अकाउंट ऑफ द डिफेंडेंट वॉज ऑल्सो फाइल्ड. ठीक है, डिफेंडेंट नंबर 3 जो इस केस में थे, वो जो इनकम टैक्स ऑफिस में उन्होंने फाइल की थी, ये एडमिशन के साथ ये भी एक एग्जिबिट की तरह कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हुई. तो कोर्ट ने बोला कि आइडेंटिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट तो भाई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित हो चुकी है. उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लिया था कि वो मार्क नहीं है एग्जिबिट की तरह, वो प्रूव नहीं है, पर कोर्ट ने पाया कि वो वोल ऑफ इट वॉज स्टैंडर्ड इन एविडेंस और वो वॉज मार्क्ड एज एग्जिबिट नंबर 6. तो कोर्ट ने वो ऑब्जेक्शन सीधे ओवररूल कर दिया और बोला कि डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ बीन प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. फिर कोर्ट ने पाया कि जिस डिफेंडेंट नंबर 3 ने 60,000 रुपये प्रॉपर्टी पे उस असेसमेंट ईयर पे खर्च तो किए थे, और दोनों एग्जिबिट्स ये प्रूव कर रहे थे कि जो हाउस है जो डिफेंडेंट नंबर 3 ने परचेज़ किया है अपने बेटे के नाम पे, बेटा इस केस में डिफेंडेंट नंबर 2 था, और बोला है कि इट वॉज एडमिटेड दैट द सन वॉज ओनली 18 years old एट दैट टाइम एंड डिड नॉट हैव मनी ऑफ हिज ओन. 18 साल का लड़का है, उसके पास अपना मनी था नहीं उस असेसमेंट ईयर में, कैसे हो सकता है? फिर इस आर्ग्यूमेंट में एक अटैक करने की कोशिश की गई कि वो एडमिशन को डिफेंडेंट का है, तो वो डिफेंडेंट नंबर 2 के खिलाफ नहीं यूज़ किया जा सकता, मतलब बेटे के खिलाफ यूज़ नहीं किया जा सकता. और जनरली पोजीशन ऑफ लॉ भी है कि को डिफेंडेंट के स्टेटमेंट आर नॉट एडमिसिबल अगेंस्ट दी अदर को डिफेंडेंट्स. एक को डिफेंडेंट का स्टेटमेंट दूसरे को डिफेंडेंट के खिलाफ रेलेवेंट नहीं होता. सिमिलरली को प्लेंटिव का भी स्टेटमेंट दूसरे को प्लेंटिव के खिलाफ रेलेवेंट नहीं होगा. तो कोर्ट ने बोला इस आर्ग्यूमेंट के लिए कि हमने तो ये जो एडमिशन है हमने बेटे के खिलाफ नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन ये एडमिशन एडमिसिबल है डिफेंडेंट नंबर 3 के खिलाफ, जिसने वो एडमिशन इनकम टैक्स ऑफिसर में भी किया था, और बैंक अकाउंट की जो पासबुक की कॉपी है वो भी प्रूव कर रही है कि उस टाइम पे उन्होंने इतना पैसा खर्च किया था एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए. फिर उन्होंने वही वाला ऑब्जेक्शन लिया कि आई वॉज नॉट कन्फ्रंटेड विद द प्रीवियस स्टेटमेंट्स, तो यू कैन नॉट एडमिट इट. तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला होगा. सुप्रीम कोर्ट ने ऑफकोर्स अर्लियर पोजीशन ऑफ लॉ कोर्ट की, लेकिन साथ में उन्होंने विगमोर ऑन एविडेंस भी कोर्ट किया, वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 1048, और उसके पेज 3 पे, विगमोर ऑन एविडेंस के पेज नंबर 3 पे उन्होंने
एक पैराग्राफ कोट किया, एंड दैट पैराग्राफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट रीड इट आउट टू यू. उसमें विगमोर ऑन एविडेंस में बोला है कि द थ्योरी ऑफ हियरसे रूल इज दैट एक्स्ट्रा जुडिशियल असर्शन इज एक्सक्लूडेड unless there has been a sufficient opportunity to test the ground of assertions and the credit of the witness. आपको पता है कि admission is an exception to the hearsay rule as well. तो विगमोर ऑन एविडेंस क्या बोला है? The theory of hearsay rule is that extrajudicial assertion is excluded unless there have been a sufficient opportunity to test the ground of assertion and the credit of the witness by cross-examination by the party against whom it is offered. For example, if Jones had said out of the court that the party opponent Smith borrowed this $50, then Smith is entitled to an opportunity to cross-examine Jones upon that assertion. But if it is Smith himself who said out of the court that I borrowed these $50, certainly Smith cannot complain of the lack of opportunity to cross-examine himself before his assertion is admitted against him. Such a request would be absurd. Hence, the objection of the hearsay rule falls away because the very basis of the rule is lacking. That is, the need and prudence of affording the opportunity of cross-examination. समझे क्यों it is an exception to the hearsay rule? This is why I like this judgment. This judgment has been the best one to explain that why it is the exception to the hearsay rule. फिर एक next objection फिर defendant number 3 में लिया. डिफेंडेंट नंबर 3 ने बोला कि जिस टाइम मैंने ये एडमिशन्स किए थे उस टाइम तो ये एडमिशन्स मेरे इंटरेस्ट के एडवर्स नहीं थे, तो फिर इनको एडमिट नहीं किया जा सकता. तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट इन द एविडेंस एक्ट and the argument is untenable as it is unreasonably restricts the opportunity to prove the true state of affairs on the party's own showing and to demolish his subsequent claim as self-contradictory. फिर कोर्ट ने फिर से विगमोर ऑन एविडेंस कोट किया और बोला कि ये पॉइंट भी डील किया गया है इस बुक में, एंड आई एम कोटिंग विगमोर नाउ. It follows that the subject of an admission is not limited to facts against the party's opponent's interest at the time of making it. No doubt the weight of credit to be given to such statements is increased when the fact stated is against the person's interest at the time, but the circumstances has no bearing upon their admissibility. On principle, it is plain that the probative reason why a party opponent's utterance is sought to be used against him is ordinarily the reason which is noted above. अभी जैसे स्मिथ वाला जो एग्जाम्पल उसने दिया था, that is that it exhibits an inconsistency with his present claim, thus tending to show doubt upon it, whether he was at that time speaking apparently in his own favor or against his own interest. Any contrary view has been characterized by Wigmore as fallacy in the fullest sense. अब देखिए, ओरिजिनली विगमोर ऑन एविडेंस अथॉरिटी नहीं है इंडिया में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने जजमेंट में, नाउ दिस बिकम्स अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ एंड इट हैज़ नाउ बिकम द अथॉरिटी. दैट इज़ वाई आई एम कोटिंग दिस जजमेंट. अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ये जजमेंट पता नहीं, बट इट इज़ अ वेरी गुड जजमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ये कैसे चीज़ें काम कर रही हैं एडमिशन्स में. तो कोर्ट ने बोला कि भाई उस वक्त आपको लग रहा था स्टेटमेंट आपके फेवर में, आपको थोड़ी ना पता था कि सर्कमस्टेंसेस बदल जाएंगे और वही स्टेटमेंट जो आपने फेवर में दिया था वो आपके खिलाफ होगा, है ना. और दूसरी बात ये कि एडमिशन्स तो सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग दोनों हो सकते हैं. वो अलग बात है कि सेक्शन 21 की रिक्वायरमेंट उन्हें फुलफिल करनी होगी अगर वो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, क्योंकि जनरली आप सेल्फ सर्विंग एडमिशन्स प्रूव नहीं कर सकते. पर कोर्ट ने कहा कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशंस इज अ डिफरेंट थिंग. आप ये मत समझिए कि आप जिस टाइम सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एक्चुअल में अगर सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है तो फिर आप ये कहें कि नहीं उस टाइम तो वो सेल्फ सर्विंग था, आप कैसे सेल्फ हार्मिंग बन गया. कोर्ट कहेगा नहीं, ये अब एडमिसिबल है. अब आपका सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट अगर सर्कमस्टेंसेस की वजह से सेल्फ हार्मिंग बन जाता है तो सेक्शन 21 का जो मेन क्लॉज है वो इसे हिट नहीं करेगा कि यू कैन नॉट प्रूव इट. उसी कंटेक्स्ट में विगमोर ने भी इन हिज बुक ऑन एविडेंस यही बोला है कि वेदर एट द टाइम ही वाज मेकिंग दी स्टेटमेंट्स अपेरेंटली हिज ओन फेवर और अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, दैट won't be as much relevant. You need to just find what is the effect of those statements which amounts to an admission.
So I hope this point is clear. Similarly, now I come to the next case, Thiru John and another versus returning officer, decided on 12th April 1977. It is also by the Supreme Court. Now the Supreme Court reiterated the principle again. It is well settled that a party's admission as defined in section 17 to 20, fulfilling the requirements of section 21 of the Indian Evidence Act, is a substantive evidence by its own force. An admission, if clear and unequivocally made, is best evidence against the party making it, though not conclusive. It shifts the onus on the maker on the principle that what a party himself admits to be true may be reasonably be presumed to be true, and until the presumption was rebutted, the fact admitted must be taken to be established. Admissions made ante litem mortem आर एंटाइटल टू ग्रेटर वेट. एंटी लिटम मॉर्टम का मतलब होता है किसी लिटिगेशन के शुरू होने से पहले. तो लिटिगेशन के शुरू होने से पहले अगर कोई स्टेटमेंट या एडमिशन दिया गया है तो उसका वेट ज़्यादा होगा. क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि लिटिगेशन जब शुरू हो जाता है तो पार्टीज़ का अब इंटरेस्ट जुड़ा है लिटिगेशन के आउटकम से, तो वो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और ये भी हो जाता है कि वो बायस्ड हो जाएंगे अपने फेवर पे. लेकिन एंटी लिटम मॉर्टम स्टेटमेंट जो एडमिशंस के लेवल पे जाते हैं उनको ग्रेटर वेट दिया जाता है क्योंकि उनमें वो लिटिगेशन के आउटकम को लेके बायस अभी एक्सपेक्टेड नहीं है. देन वी कम टू द केस ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस श्यामलाल. अब इन्होंने लेटर्स में, आपको याद होगा मैंने कल भी बताया था कि लेटर्स में एडमिट कर लिया था कि उन्होंने कुछ पैसेंजर्स को बैठा लिया था बिना उनसे पैसे लिए, तो ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में डिसमिस कर दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने वही बात बोली थी कि देखिए एडमिशंस का मतलब ये नहीं कि वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है. एडमिशंस कैन बी शोन टू बी रॉन्ग और अथॉरिटीज़ को ऐसा मैकेनिकली एक्ट नहीं करना चाहिए था कि आपने सिर्फ एडमिशंस के बेसिस पे जो लेटर्स में था उसी के बेसिस पे डिसमिस कर दिया ऑफिसर को. लेकिन एक और केस याद रखिए कि अभी जैसे मैंने बताया ना कि एंटी लिटम मॉर्टम की स्टेटमेंट, आर वर्सेस पेट चेरेनी का भी केस लॉ है. ये है, इसका साइटेशन 1855 वॉल्यूम नंबर 7 CC पेज नंबर 70. अब इसमें बोला गया था कि इफ़ अ मैन मेक्स अ डेक्लेरेशन अकम्पनिंग एन एक्ट that is generally evidence, but declarations made 2 or 3 days or even a week previous to the transaction in question cannot be evidence. Otherwise it would be easy for a man to lay grounds for escaping the consequences of his wrongful acts by making such declaration. ये भी पॉइंट याद रखिएगा. ये भी मत समझ लीजिएगा कि एडमिशंस मान लीजिए फिर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है बैठ के 2-3 दिन पहले वो कह रहा है कि यार 1 महीने बाद मुझे सूट डालना है, मैं अभी से एडमिशन मैन्युफैक्चर करने लगता हूँ. ये भी नहीं हो सकता. यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पॉइंट एज वेल. तभी ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिटरमाइन किया जाता है कि एडमिशन्स की वैल्यू क्या होती है. कोई कट एंड ड्राइड आंसर नहीं दिया है कोर्ट ने, और इसीलिए नहीं दिया है कि मान लीजिए अगर कोर्ट कह दे एडमिशन्स बहुत पावरफुल होते हैं, उसी के बेसिस पे आप किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं या जजमेंट दे सकते हैं किसी सूट पे, तो पता चला किसी ने लॉ पढ़ लिया और फिर वो अपने फेवर में सूट डालने से पहले एडमिशन्स क्रिएट कर रहा है, फिर सूट डालने के बाद एडमिशन्स को उसने फाइल पे लगा दिया और बस वाइला जजमेंट्स उसके फेवर में. ऐसा नहीं चल सकता. तभी एडमिशन की कितनी क्रेडिबिलिटी, कितना वेट होगा, वो फैक्टर सर्कमस्टेंसेस पे डिटरमाइन होता है. अब एक और केस है राकेश वाधवान वर्सेस मेसर्स जगदम्बा इंडस्ट्रियल, डिसाइडेड ऑन 26 अप्रैल 2002 बाय द सुप्रीम कोर्ट. अब इसमें जो मेन इशू था वो क्या था कि टेनेंट्स कह रहे थे कि जो रेंट की रेट है वो 1800 पर मंथ है, पर लैंडलॉर्ड कह रहा था कि जो रेंट की रेट है वो 2000 रुपये पर मंथ है. तो ये दोनों में इशू था. अब हुआ क्या कि इस केस में क्या कहाँ से एडमिशन्स आ गए. फर्स्ट जो चेक था, चेक में ये देखा कोर्ट ने कि टेनेंट जो थे ना 2000 रुपये पर मंथ पे कर रहे थे. डीड ऑफ लीज और टेनेंट्स के जो लेटर्स थे अकम्पनीड बाय चेक, वो भी यही दिखा रहे थे कि जो रेट ऑफ रेंट है वो 2000 पर मंथ है. फिर अब इशू क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात क्यों आई, क्योंकि अपैलेट अथॉरिटी जो थी उसने 1800 रुपये पर मंथ माना रेंट की रेट. क्यों माना? क्योंकि एक केस में वहाँ पे लैंडलॉर्ड था, टेनेंट था, वहाँ पे लैंडलॉर्ड का पार्टीशन सूट चल रहा था. वहाँ पे एक एडमिशन एक बात बोली गई थी कि जो रेट ऑफ रेंट है जो प्रेमिसेस में वो 1800 पर मंथ है.
अब वो टेनेंट ने बोला था, अब उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एडमिशंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली अ पीस ऑफ एविडेंस and can be explained. It does not conclusively bind the party unless it amounts to an estoppel. Value of an admission has to be determined by keeping in view the circumstances in which it was made and to whom. A mere failure to object cannot be placed on a higher footing than an admission. If two clear-cut admissions are made by the tenants referred herein above, मतलब lease deed, letters accompanied by checks etc., वो क्लियर कट एडमिशंस हैं, और फिर अगर उनको वे किया जाए अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स मियर फेलियर टू ऑब्जेक्ट ऑन अ रॉन्ग अवॉर्मेंट एज टू रेट इन रेंट इन अ केस where it was not a point in issue, then no inference other than the one that the rate of rent being 2000 per month could be drawn. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कौन कहाँ पे एडमिशंस रेलेवेंट हो गए? लीज डीड में, टेनेंट्स के लेटर्स में, एंड दैट वाज अकम्पनीड बाय चेक। कोर्ट ने कहा कि अरे भाई, अगर हम उस दूसरे सूट की जो आप बात कर रहे हैं, जो जहाँ पे 1800 पर मंथ था, वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड का फेलियर टू ऑब्जेक्शन था, और पहली बात वो पार्टीशन सूट था, वहाँ पे रेंट डायरेक्टली इन क्वेश्चन भी नहीं था। तो अगर वहाँ पे एक मियर फेलियर ऑफ ऑब्जेक्शन है तो उसे एडमिशन की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता, वहाँ पे एडमिशन से हायर फुटिंग उसे नहीं दी जा सकती। यहाँ पे तो इस केस में दो क्लियर कट एडमिशंस दिख रहे हैं, और लेटर सपोज हम उसको मान भी लें कि लेटर सपोज वो था, तो भी अगर वे करेंगे उस एडमिशन को दो क्लियर कट एडमिशन से जो टेनेंट्स ने दिए हैं डीड ऑफ लीज में और टेनेंट के लेटर्स में, विच वर अकम्पनीड बाय चेक, वो अपने आप में इनफ है टू ओवर रूल द प्ली एंड टू होल्ड दैट द रेट ऑफ रेंट इज 2000 पर मंथ। जो टेनेंट्स की प्ली है ना कि 1800 रुपये पर मंथ है, दैट इज टोटली फॉल्स इन द लाइट ऑफ द एडमिशंस। अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, क्या एडमिशंस या कन्फेशंस सॉलिलोक्वी में की जा सकती हैं? सॉलिलोक्वी मतलब एकांत में। मान लीजिए आप अकेले बैठे हैं और अकेले बैठ के किसी चीज़ को कोई बात बोल रहे हैं, तो क्या वो एडमिशन या कन्फेशन की कैटेगरी में आ सकता है? साहू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हाँ वो आ सकता है। उसके पर्पस के लिए उन्होंने टेलर ऑन एविडेंस भी कोट किया था। उसने बोला व्हाट अक्यूज्ड हैज़ बीन ओवरहर्ड मटरिंग टू हिमसेल्फ और सेइंग टू हिज वाइफ और टू एनी अदर पर्सन इन कॉन्फिडेंस वुड बी रिसीवेबल इन एविडेंस। सिमिलरली एक और पॉइंट को कोट किया था, दैट इज़ फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस बाय WM बेस्ट, 12th एडिशन, पेज नंबर 454, और उसमें बोला था वर्ड्स एड्रेस टू अदर्स एंड राइटिंग्स आर नो डाउट द मोस्ट यूजुअल फॉर्म्स बट द वर्ड्स अटर इन सॉलिलोक्वी सीम्स इक्वली रिसीवेबल। सेम फिप्सन ऑन एविडेंस भी कोट किया कि अ स्टेटमेंट विच द prisoner has been overheard muttering to himself, if otherwise than in his sleep, is admissible against him if independently proved। अब देख रहे हैं कि अब इससे आपको दो चीज़ें मिलती हैं कि पहली बात तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है कि सॉलिलोक्वी में जो एडमिशंस या कन्फेशंस हैं वो एडमिसिबल हैं। दूसरा आपको एक पॉइंट ये समझना चाहिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर्स और जजेस कितनी पढ़ाई करते हैं। अब एक एक बुक्स कहीं कहीं से रेफरेंसेस ढूंढ के ला रहे हैं, कितना रिसर्च वर्क करते हैं एक छोटी से छोटी चीज़ में। दे जस्ट गिव देयर हार्ट एंड सोल टू प्रूव समथिंग बियॉन्ड ऑल पॉसिबल डाउट्स। अब आप देख रहे हैं ना कि इसी तरीके से आपको भी बनना है, यही मेंटालिटी आपको भी रखनी है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू बिलोंग टू सच अ लर्नेड प्रोफेशन एंड यू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन। तो साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में आपका एक आंसर सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ पे कन्फेशन डायरेक्टली उसमें था, लेकिन कन्फेशन क्या है? कन्फेशन इज अ सब स्पीशी, है ना, एडमिशन से ही निकलता है कन्फेशन। तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि अगर कन्फेशन सॉलिलोक्वी में हो सकता है तो एडमिशन भी सॉलिलोक्वी में हो सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू स्क्रूटिनाइज प्रोविजंस फ्रॉम सेक्शन 17 to 31 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, you will come to a conclusion that the statement is the genus, admission is the species and the confession is the subspecies. What does the statement mean? अब statement तो oral भी हो सकते हैं, documentary भी हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ चीज़ें बोली और बोला कि दिस प्रूफ, ये बोला था प्रोवेटिव वैल्यू ऑफ एन एडमिशन और कन्फेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स कम्युनिकेशन टू अनदर, दो जस्ट लाइक एनी अदर पीस ऑफ एविडेंस इट कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस ओनली ऑन प्रूफ। This proof in the case of oral admissions or confession can be offered only by witnesses who heard the admission
or confession as the case may be. फिर एक illustration दिया, the following illustration pertaining to a written confession brings out this idea. A kills B, enters in his diary that he had killed him, puts it in his drawer and absconds. When he places his act on record, he does not communicate to another. Indeed, he does not have any intention of communicating it to third party. Even so, at the trial, the statement of the accused can certainly be proved as confession made by him. If that be so, in the case of statement in writing, there cannot be any difference in principle in the case of an oral statement. Both must stand on the same footing. तो ये साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का पॉइंट था. तो ये एक्चुअली मैं एडमिशन के ही पॉइंट में कवर कर रहा हूँ क्योंकि वो जब, लेकिन आप इसे कन्फेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये केस डायरेक्टली है कन्फेशन पे. कन्फेशन मेड इन सॉलिलोक्वी, मतलब एकांत में जब आप खुद से बात कर रहे हो. फिर एक और पॉइंट याद रखिएगा कि द एडमिशन इज़ अ बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द मेकर. द एडमिशन इज़ बाइंडिंग ऑन द पर्सन और द पार्टी मेकिंग इट. एडमिशन ऑफ अ विटनेस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टी. जिसने वो एविडेंस दिया है, जो एडमिशन दिया है, वो उसको बाइंड करेगा. ये नहीं कि आप मान लीजिए प्रोसिक्यूशन की साइड से हैं और आपके केस में एक विटनेस आया, अब उसने हो सकता है आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो वो एडमिशन आपको नहीं बाइंड करेगा, वो एडमिशन सिर्फ उसी विटनेस को बाइंड करेगा. द एडमिशन ऑफ अ विटनेस कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और ड्रॉइंग एन इन्फेरेंस बाय द कोर्ट, ठीक है. लेकिन एडमिशन ऑफ अ विटनेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन एडमिशन ऑफ द पार्टी एंड इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टी. रिमेंबर दैट. वैसे ही एक और केस का रेशियो ध्यान रखिएगा, बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह. ये 2 अगस्त 1966 का डिसाइड हुआ. अब इसमें वही बात कैटेगोरिकली बोली गई थी जो मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताई थी. एन एडमिशन मेड बाय अ पार्टी इन अ प्लेन साइंड एंड वेरीफाइड बाय हिम मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट हिम इन अदर सूट्स, ठीक है. In other suits, the admission cannot be regarded as conclusive and it is open to the party to show that it is not true. लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ यूसेज की बात कर रहे हैं. तो मान लीजिए किसी एक सूट में प्लीडिंग्स में कुछ उन्होंने एडमिशन्स किए हैं, तो यू कैन यूज इट इन अदर सूट, इन डिफरेंट सूट्स, लेकिन वहाँ पे वो दिखा सकते हैं कि दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपका एडमिशन से लेके मैंने डील की. अब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स जल्दी जल्दी आपके लिए डील करता हूँ. अब हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ इमैटेरियल टू whom द एडमिशन इज़ मेड. एडमिशन मेड टू अ स्ट्रेंजर इज़ रेलेवेंट इवन if the party making the statement does not know that the stranger is present in the area. So statement whether made to a stranger or in soliloquy, that would be admissible, ठीक है. आपको ये भी याद रखना है कि एडमिशन्स जो हैं वो सेल्फ सर्विंग भी हो सकते हैं, सेल्फ हार्मिंग भी हो सकते हैं. और सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट तभी अलाउ किए जाएंगे प्रूव होने के लिए जब सेक्शन 21 के 3 एक्सेप्शंस में वो फॉल करे, ठीक है. सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स, सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस आर जनरली एडमिसिबल बिकॉज ऑफ सेक्शन 21. दूसरा ये चीज़ याद रखिएगा, एडमिशन शुड बी वॉलंटरली, ठीक है. इट शुड बी वॉलंटरली गिवन. अगर वो वॉलंटरली गिवन नहीं है तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एन एडमिशन. किसी को धमका के एडमिशन लेना, किसी को ड्यूरेस से एडमिशन लेना, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडमिशन. अब आपको इस पर एक केस बताता हूँ इलस्ट्रेशन के लिए, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा. श्री कृष्णन वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 376. इसमें एन एग्जामिनी गेव एन अंडरटेकिंग दैट इफ ही डिड नॉट फाइल हिज एम्प्लॉयर्स परमिशन द यूनिवर्सिटी माइट डू एनीथिंग इट लाइक्ड. तो कोर्ट ने बोला कि इट इज़ वेल सेटल्ड दैट एन एडमिशन मेड इन इग्नोरेंस ऑफ द लीगल राइट्स और अंडर ड्यूरेस कैन नॉट बाइंड द मेकर. द एग्जामिनी सबमिटेड द अंडरटेकिंग अंडर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ नॉट being permitted. The consequence of the university's failure to scrutinize his form and to find out the fraud, if any, cannot be visited upon the candidate. अब इस केस में जो एग्जामिनी थे इन्होंने जो फॉर्म सबमिट किया था उसमें डिफेक्ट और इन्फॉर्मिटीज़ थी. तो कोर्ट ने उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला कि आपका तो HOD जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, और उसकी सज़ा एग्जामिनी क्यों भुगते. और साथ में आपने उससे ड्यूरेस में उससे लेटर लिखवाया एंड ही वॉज एंड द कोर्ट सेड इट इज़ वेल सेटल्ड दैट एडमिशन मेड इन इग्नोरेंस ऑफ लीगल राइट और ड्यूरेस विल नॉट बाइंड द मेकर ऑफ द एडमिशन, ठीक है.
सो फिर नेक्स्ट पॉइंट भी समझ लीजिएगा कि एडमिशंस आर एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल। अभी उसके लिए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोक्ष बिल्डर का जजमेंट बताया, सो बी वेरी अवेयर अबाउट दैट इज़ अ वेरी गुड जजमेंट। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 18। अब मैं सेक्शन में धीरे धीरे जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं उससे डील कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको ओवर आर्चिंग केस लॉ सारे कॉन्टेक्स्ट में बता दिए। तो अब इसमें एक पॉइंट है कि क्या को डिफेंडेंट या को प्लेंटिव के एडमिशंस बाइंड करेंगे मेकर को? देन द आंसर इज नो। किसी भी को डिफेंडेंट या को प्लेंटिव के एडमिशन दूसरे को डिफेंडेंट या को प्लेंटिव पे अप्लाई नहीं करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर एडमिशन विल बाइंड द मेकर ऑफ इट, ठीक है, मेकर को बाइंड करता है अनलेस एंड अनटिल जो एडमिशन कर रहा है ही हैज़ बीन एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड by the other to make such admissions on his behalf। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, पार्टनरशिप की क्या पोजीशन है। तो देखिए पार्टनरशिप में स्कोप ऑफ अथॉरिटी और एडमिशंस का बहुत वो हो जाता है, रेलेवेंस हो जाता है। तो अगर मेंबर ऑफ द फर्म स्कोप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस में एक्ट कर रहा है हैं, तो अगर वो एक एडमिशन करता है अपनी अथॉरिटी और स्कोप के अंदर, तो वो एडमिशंस बाकी पार्टनर्स को बाइंड करेगा। All right, because remember partners are agents of one another so far the business of partnership is concerned, because where several persons are engaged in one common business or dealing, then a statement made by one with the reference to the transaction which forms a part of their joint business have always been held to be admissible in evidence। ध्यान रखिएगा, स्कोप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए ये सारे एडवांस पॉइंट हैं, एग्जाम में आपको इतना नहीं पूछेगा कोई, जितना भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये तब है जब आप DHJS या HJS या प्रैक्टिस के लिए आप अपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए। फिर बताता हूँ प्रिंसिपल एंड श्योरिटी का क्या सीन है। अब द एडमिशंस ऑफ अ प्रिंसिपल कैन समटाइम्स बट ओनली सेल्डम बी रिसीव्ड एज एविडेंस इन एन एक्शन अगेंस्ट द श्योरिटी। Admission of a principal can sometimes, but in a very rare situation, can be received as evidence in an action against the surety upon his collateral undertaking. And in these cases, the main inquiry is whether the declarations of the principal were made during the transaction of the business for which the surety was bound, so as to become part of res gestae. If so, they are admissible, otherwise they are not. अब ये मैं कोट कर रहा हूँ टेलर 12th एडिशन वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 785 से। अब ये भी सारे एडवांस पॉइंट हैं, ये एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा। फिर गार्डियन, द एडमिशन ऑफ अ गार्डियन एड लिटम और नेक्स्ट फ्रेंड विल नॉट बाइंड द माइनर बिकॉज द गार्डियन ऑफ एन इन्फेंट हैज़ नो पावर टू बाइंड हिम बाय एडमिशंस, रिमेंबर दैट। अब आपने सेक्शन 18 में एक लाइन पढ़ी होगी, पार्टी सुइंग और सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। अब इसका क्या मतलब है, इसमें कौन कौन आएगा? इसमें ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर्स इन द कैरेक्टर ऑफ एन एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर एंड इवन द असाइनी ऑफ अ बैंकरप्ट पर्सन वुड बी कवर्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। ये याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सच पर्सन्स मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर ऑफ द पर्सन सो इंटरेस्टेड। इसका मतलब है कि वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एज अ ट्रस्टी दे रहे हैं या एज एन एग्जीक्यूटर दे रहे हैं या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर दे रहे हैं, ठीक है। अगर इस अथॉरिटी के बाहर से वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इट वुड नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 18, ठीक है। सिमिलरली एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर, अगर ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर बनने से पहले कोई एडमिशन देता है, स्टेटमेंट देता है, तो दैट वुड नॉट बी कवर्ड विद इन द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्शन 18। अब पर्सन्स वो है प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट को भी आप समझते होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी लीज पे दूँ, ठीक है, आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो अब आपका उस पर प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए उसी प्रॉपर्टी में कोई थर्ड पर्सन भी अपना क्लेम लगा रहा है, और जब भी लेटर सपोज आप उस प्रॉपर्टी में, लीज प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो आपका उसका झगड़ा होने लगता है, तो आप एक सूट दायर करते हैं कोर्ट में फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ योर टाइटल, है ना, कि यू आर द टेनेंट ऑफ दैट लैंड एंड योर पोजेशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय दिस स्ट्रेंजर पर्सन। उसको आप डिफेंडेंट बनाते हैं।
तो आप टाइटल किसके थ्रू क्लेम कर रहे हैं? मेरे थ्रू क्लेम कर रहे हैं, तो हमें भी आप को प्लेंटिव बनाएंगे, है ना? तो इस सूट में अगर मैंने ये बोल दिया कि मेरे पास टाइटल नहीं, मेरे पास टाइटल टू द प्रॉपर्टी नहीं है, और या ये प्रॉपर्टी डिफेंडेंट की है, या मैंने ये बोल दिया कि डिफेंडेंट इज द पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ लैंड एंड नॉट द प्लेंटिव, मतलब आप नहीं है पोजेशन में, वो डिफेंडेंट पोजेशन में, तो ये एडमिशन आपके खिलाफ रेलेवेंट हो जाएगा, बिकॉज you are the person who have derived the interest in the subject matter of the suit through me, है ना? क्योंकि I am the primary person who has the proprietary or pecuniary interest. You are the person who has derived that interest, which is the subject matter of the suit, from me. यही टर्मिनोलॉजी यूज हुई है सेक्शन 18 में, देखिएगा। तो ये एडमिशंस की कैटेगरी में आएंगे इफ दे आर मेड ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट। अब यही आप समझ लीजिए कि मान लीजिए इंटरेस्ट एक्सटिंक्ट हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी अब मेरी है ही नहीं, मैंने आपको बेच दी, अब मैं जितने भी स्टेटमेंट दूं उस प्रॉपर्टी को लेके, दैट वुड नॉट बी एन एडमिशन, ठीक है, बिकॉज आई नाउ लैक द प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि एक केस था श्रीचंद गुप्ता वर्सेस गुलजार सिंह, AIR 1992, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 123। अब इस केस में एक टेनेंसी मैटर था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अब इस केस में एक एडमिशन टेनेंट के ब्रदर ने मेक किया था, तो कोर्ट ने उस एडमिशन को रेलेवेंट नहीं पाया क्योंकि टेनेंट के ब्रदर का कोई पेक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इन द मैटर ऑफ टेनेंसी नहीं था, ठीक है, एंड नाइदर ही वाज द पर्सन हु वाज डिराइविंग दैट इंटरेस्ट फ्रॉम दैट, तो वहाँ पे वो एडमिशन रेलेवेंट नहीं पाया कोर्ट ने, ठीक है। सो आई होप यू गेट दिस एग्जाम्पल। ये थोड़े एडवांस पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए हैं, दीज आर नॉट देयर फॉर योर एग्जाम्स एट ऑल। एग्जाम्स के लिए आपको बस नागिन दास वर्सेस दलपत राम, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोक्ष बिल्डर, बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह, आपको और कौन सा केस है, विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारिका प्रसाद, और भरत सिंह वर्सेस भागीरथी, इन्हीं सारे पोजीशन ऑफ लॉ का ध्यान रखना है, यार आंसर विल बी मोस्ट कंप्लीट, सबसे कंप्लीट आंसर फिर आप ही का होगा एग्जाम में। ऑफ कोर्स याद रखिएगा, बेयर एक्ट फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू इंकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ द केस लॉ, ठीक है, इन केस लॉ के प्रिंसिपल। बेयर एक्ट के इंग्रेडिएंट सबसे पहले हैं, बेयर एक्ट के इंग्रेडिएंट नहीं लिख पाए, नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, याद रखिएगा। फिर सेक्शन 18 का जो लास्ट क्लॉज है, वापस उस पर आता हूँ, वो एक चीज़ इंडिकेट करता है, देयर शुड बी अ प्रिविटी दैट इज म्यूचुअल और सक्सेसिव रिलेशनशिप टू द प्रॉपर्टी और राइट, वो एक चीज़ तो इंडिकेट करता है। अच्छा, प्रिवीज कितने तरीके की होती हैं? प्रिवीज 3 तरीके की होती हैं। पहली होती है प्रिवी इन ब्लड, विच इज़ एन हेयर एंड एंसेस्टर और कोपार्टनर। सेकेंड इज प्रिवीज इन लॉ, which are executor, testators और administrator and the persons dying interstate। interstate मतलब बिना विल के अगर कोई मर जाता है, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा। अगर DGS कोई प्लान कर रहा है देना, या पंजाब या हरियाणा प्लान कर रहा है देना, तो वहाँ पे ऐसी टर्मिनोलॉजी सीधे सीधे यूज़ कर ली जाएंगी, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट। थर्ड इज प्राइवीज इन एस्टेट और इंटरेस्ट एज वेंडर एंड परचेजर, लीजर एंड लीसी, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, डोनर एंड डोनी। अब आपको एक बात बताता हूँ कि 3 तरह की प्राइवीज रिकॉग्नाइज की गई हैं, लेकिन प्रिलिमिनरीज में अगर कभी भी ये क्वेश्चन आए ना, तो यूनिवर्सल से आता है ये, और उसमें हमेशा थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ द प्राइवीज इन एस्टेट और इंटरेस्ट, वही करेक्ट माना गया है। तो मैं आपको तो ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप प्रीलिम्स में देखें तो, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि प्रीलिम्स में ये थर्ड ऑप्शन को ही सही ऑप्शन मानते हैं, इवन दो इट इज़ टेक्निकली रॉन्ग, टेक्निकली वो रॉन्ग है, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ ना, एक यूनिवर्सल की क्वेश्चन बैंक आता है, उसमें से वो ये क्वेश्चन निकाला गया है। और ये जो प्राइवीज वाला पॉइंट है, ये अगर आप किसी भी अच्छी बुक को रेफ़र करेंगे तो वो आपको बताएगा कि द प्राइवीज आर ऑफ 3 टाइप्स, और तीनों इसके कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। लेकिन प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जो कमीशंस हैं वो हमेशा थर्ड ऑप्शन को सही मानते हैं। तो अपनी करेक्टनेस के लिए ये जान लीजिए कि प्रीवीज 3 तरह की होती हैं। प्रीवीज इन ब्लड, जिसमें हेयर, एंसेस्टर और कोपार्टनर आते हैं। प्रीवीज इन लॉ, executor and testator and administrator and the person dying intestate. Third is privies in estate or interest as a vendor and purchaser, leaser and leasee, mortgage and mortgagee, donor and donee.
ठीक है, ये 3 तरीके की होती हैं। तो ये तो मैंने आपको आपके मेंस के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए बता दिया। वैसे मेंस में भी सवाल आना नहीं है आपसे, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ, इंटरव्यू में आ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे। तो उसके लिए मैंने आपको तीनों पोजीशन बता दी। लेकिन अगर प्रीलिम्स में आप ये क्वेश्चन देखें तो जनरली आप थर्ड ऑप्शन के लिए ही जाइएगा, प्रीवियस इन स्टेट। उसी पॉइंट को सही मानते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 18, इवन दो दे आर रॉन्ग, दे आर टेक्निकली रॉन्ग। फिर आप सेक्शन 19 पे आ जाता हूँ, क्योंकि कल हम ये सारे सेक्शन पढ़ चुके हैं, इसलिए इन पे ज़्यादा सेक्शन की रीडिंग पे डवेल नहीं करेंगे। प्रिंसिपल क्या है इस सेक्शन का? देखिए, एक चीज़ याद रखिए, इस सेक्शन का ये ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो कुछ स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट बना रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। इस सेक्शन का सिर्फ इतना ऑब्जेक्ट है कि वो एक कैटेगरी ऑफ पर्सन ऐड कर रहा है जिनके थ्रू स्टेटमेंट्स जो हैं वो एडमिशन की कैटेगरी में आएंगे, प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 19 रेड विद सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 90 में जो पार्टी एडमिशन कर रही है वो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट कर रही है ना भाई। इलस्ट्रेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, बी sues ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ए डिनाइज दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। अ स्टेटमेंट मेड बाय सी दैट ही ओड B rent is an admission and is a relevant fact against A if A denies that C owe rent to B. ठीक है? This section also forms an exception to the rule that the statements made by strangers to the proceedings are not admissible against the parties. इसको लैटिन में कहते हैं res inter alios acta। ये टर्म तब यूज़ किया जाता है जब आप ये बताना चाह रहे हो कि a matter does not involve the same parties and evidence of such matter is generally admissible। मैं आपको बात बताता हूँ। मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है, मैं भी आपको रेस इंटर एलियोस एक्टा की मीनिंग बता रहा हूँ। मेरे और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है और लेट अस सपोज ये थर्ड पार्टी को भी अफेक्ट करता है कुछ हद तक, और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे लेट अस सपोज एक कंट्रोवर्सी खड़ी होती है और हम एक सूट दायर करते हैं। तो अब मान लीजिए जो थर्ड पार्टी है वो भी उस सूट में शामिल है। अब मान लीजिए जो मेरे और आपके बीच में जो एग्रीमेंट था, मैं उसका कोई टर्म यूज़ करने की कोशिश करता हूँ स्ट्रेंजर के खिलाफ और कहता हूँ कि देखो हमारे टर्म के हिसाब से तुम इस इशू में तब तक नहीं आ सकते जब तक तुमने अपनी लाइबिलिटी ना निभा ली हो। तो वो स्ट्रेंजर क्या पॉइंट उठाएगा कोर्ट में? वो ये बोलेगा रेस इंटर एलियोस एक्टा, क्योंकि मैं इस ट्रांजैक्शन का पार्टी नहीं था तो आपके एग्रीमेंट के क्लॉजेज मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं हो सकते। ठीक है? सो एविडेंस ऑफ सच मैटर वुड बी इनएडमिसिबल अगेंस्ट हिम। ठीक है? लेकिन सेक्शन 19 इज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल and the statement made to a stranger or proceedings are not admissible generally against the party। क्योंकि यहाँ पे एक stranger ही अपनी liability admit कर रहा है and that is doing what? It is affecting your position, है ना? तो ये एक्चुअली में ये स्ट्रेंजर सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट एडमिट करता है, लेकिन उसका सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट आपको भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन है ऑफ द रूल ऑफ रेस इंटर एलियोस एक्टा। ठीक है? ये आप इलस्ट्रेशन से ही समझ सकते हैं कि इसका पॉइंट क्या है सेक्शन 19 का। इसका इलस्ट्रेशन सीधे आपको एक ही चीज़ बताता है कि जब लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन depends upon liability of a stranger to the suit, then the admission by the stranger in respect of his liability would amount to admission on the part of that person। पॉइंट याद रखिएगा, इसके पर्पस के लिए भी सेक्शन 19 को भी सेक्शन 17 और सेक्शन 21 की रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से प्रूव करनी होगी अलॉन्ग विथ सेक्शन 19। ठीक है? ये बात याद रखिएगा। ये सारे सेक्शन साथ में पढ़े जाते हैं। अगर आपको 17 से लेके 31 रेड विद 115 एंड सेक्शन 58 कर दें तो आपका लॉ ऑफ एडमिशन और कन्फेशन काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि एडमिशन्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक कन्फेशन ही आएगा। तो इसलिए अगर कन्फेशन अच्छे से समझना है तो एडमिशन अच्छे से समझ लीजिए। अब हाँ, अब मैं बताता हूँ कि लोगों को क्यों कन्फ्यूजन होती है कि जो एडमिशन है सिविल केस में होते हैं, क्योंकि एडमिशन्स में मैंने अभी तक ज़्यादातर जो चीज़ों की बात की होगी वो सिविल के कंटेक्स्ट में की होगी, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि एडमिशन सिर्फ सिविल केस में होता है। एडमिशन क्रिमिनल केसेस में भी होते हैं, एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में होते हैं, बात याद रखिएगा। ठीक है? कुछ लोग ये एप्रीहेंशन एप्रीहेंशन बना लेते हैं कि
जो कन्फेशन है वो क्रिमिनल में होते हैं, एडमिशन में होते हैं सिविल में होते हैं, ऐसा नहीं है. एडमिशंस आर प्रेजेंट इन क्रिमिनल ट्रायल एज वेल. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. सिमिलरली मैं सेक्शन 20 पे आ जाता हूँ. सेक्शन 20 का प्रिंसिपल क्या है? अब इसका प्रिंसिपल ये है कि व्हेन अ रेफरेंस इज मेड ओवर टू अ डिस्प्यूटेड मैटर टू अ थर्ड पर्सन, देन if such reference has been made for the purpose of settlement of differences existing between the parties and to enable the parties themselves to effect a settlement on the information, then in such cases the party is bound by the declaration of the person referred to in the same manner and to the same extent as if it was made by himself. जैसा कि illustration क्या कहता है? The question is whether the horse sold by A to B is sound, and A says to B, go ask C, he knows all about it. तब C का स्टेटमेंट उस केस में एडमिशन होगा. ठीक है. सिमिलरली वेयर लेट अस सपोज द डिफेंडेंट सेड, if C will say that he did deliver the goods, then I will pay for them. Now in this situation क्या होगा? यहाँ पे C का स्टेटमेंट एडमिसिबल हो जाएगा एंड द डिफेंडेंट वुड बी बाउंड बाय इट. ठीक है. डिफेंडेंट कहता है कि अगर लेट अस सपोज C ने ये बोल दिया कि गुड्स वर डिलीवर्ड, देन आई विल पे फॉर देम, और C ने आके बोल दिया कि हाँ गुड्स वर डिलीवर्ड. नाउ अब क्या हो गया? ये एडमिशन है एंड इट विल बाइंड दी डिफेंडेंट. अब एक टर्म है इसमें, जो टर्म इंफॉर्मेशन ऑकर होता है सेक्शन 20 में. अब इस टर्म को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे एक्सप्लेन किया है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है द वर्ड इंफॉर्मेशन ऑकरिंग इन सेक्शन 20 is not in the sense to be understood that the parties decide to know something which none of them had any knowledge of. Where there is a dispute as regards to certain questions and the court is in need of information regarding the truth on that point, then any statement that the referee may make is nevertheless an information within the meaning of section 20. तो कोर्ट ने बोला कि आप इसको इतने छोटे लेवल पे मत सोचिए कि इंफॉर्मेशन ऑकरिंग इन सेक्शन 20 ये उसी सेंस में यूज होगी कि पार्टीज डिजायर टू नो समथिंग विच नन ऑफ देम न्यू, और अगर किसी को पता चल गया देन सेक्शन 20 विल नॉट अप्लाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऐसे नहीं काम करता. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट एज रिगार्ड टू सर्टेन क्वेश्चन एंड द कोर्ट इज इन नीड ऑफ दैट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रूथ ऑन दैट पॉइंट, देन एनी स्टेटमेंट दैट द रेफरी, मतलब ये थर्ड या स्ट्रेंजर पर्सन जो मेक करेगा, who he makes, then that would be covered within the expression information within the meaning of section 20. अब सेक्शन 21 का बेयर एक्ट प्रिंसिपल और इलस्ट्रेशन का मैं कल ही डिस्कशन कर चुका हूँ, तो आज उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी. बट मेक श्योर कि आप जितना भी एडमिशन के लॉ के बारे में जब भी बात करें तो सेक्शन 21 ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. ठीक है. इनफैक्ट आई वुड गो टू अ लेवल and say that it is the most important thing that you should first refer as far as the law of admission is concerned. Section 21 बहुत important है, हमेशा इसके बेयर एक्ट के प्रिंसिपल्स याद रखिएगा. जनरल रूल क्या है सेक्शन 21 का? Admissions cannot be proved by on behalf of the person who makes them or by his representative in interest, except when it is of such nature that if the person making it were dead, it would be relevant under section 32. Secondly, if it consists of the statement of the existence of any state of mind or body made at or about the time when such state of mind or body exists and it is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable. So, क्या इसके ingredient है? Statement, the statement should be in relation to existence of state of mind or body plus accompanied by conduct rendering is falsehood improbable. And third is when it is relevant otherwise than as admission. अब ये मैंने आपको कल ही इसके 2-3 इलस्ट्रेशन दे दिए थे. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, क्योंकि उसका पॉइंट वहीं तक है. अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन और देता हूँ जो उस कॉन्टेक्स्ट में होगा, क्रिमिनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में. लेट अस सपोज एक अक्यूज्ड पर्सन से एक सवाल पूछा जाता है कि जो विक्टिम के चेस्ट पे बाइट मार्क्स हैं क्या वो तुमने दिए हैं, और लेट अस सपोज जो अक्यूज पर्सन है वो मेडिकल रिपोर्ट भी देख चुका है, तो वो कह देता है हाँ वो बाइट मार्क्स मेरे ही हैं. अब ये क्या है? ये एडमिशन है. ठीक है. एंड दिस इज एडमिसिबल. ठीक है, बिकॉज दिस एडमिशन विल गो अगेंस्ट हिम. एंड सेक्शन 21 के पॉइंट क्या कहता है कि जनरली अ सेल्फ हार्मिंग एडमिशन इज जनरली एडमिसिबल.
However, self-serving admissions cannot be proved generally unless they fall within the 3 exceptions that are enumerated in section 21. उसको illustration के context में समझ लीजिएगा, which I have discussed earlier. अब सेक्शन 22 कहता है ओरल एडमिशन एज टू कॉन्टेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट अनलेस एंड अनटिल पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज दैट ही इज इंटाइटल्ड to give secondary evidence of its contents of such documents under the rule hereinafter given unless the genuineness of the document produced is itself in question. तो दो एक्सेप्शन क्रिएट किए गए हैं. पहला कि जब तक आप एक पर्सन इंटाइटल्ड ना हो जाए सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, या दूसरा जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इज इटसेल्फ इन क्वेश्चन, अगर ये दोनों एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता है तो ध्यान रखिएगा ओरल एडमिशन एज टू कॉन्टेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर नॉट एडमिसिबल. ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे केस में इंस्ट्रूमेंट को खुद बुलाया जाता है और इंस्ट्रूमेंट को खुद देखा जाता है टू डिटरमाइन वेदर इट हैज़ एनी एडमिशंस और नॉट, और उसका ओरल एविडेंस अलाउ नहीं करता है कोर्ट फिर. Because if something is reduced to writing, then the writing would be considered as the best evidence, not the oral account of it. And the general rule is, if the content of the document is capable of production and being proved inside a court, then it must be produced and proved inside a court. अब सेक्शन 22A आपका सेक्शन 65A और 65B से थोड़ा रिलेट करता है, तो उसको प्राइमरली तभी डिस्कस करेंगे व्हेन विल कम टू दैट सेक्शन. अब मैं आ जाता हूँ एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको विदाउट प्रेजुडिस लिख लीजिए. यहाँ पे एक दो टर्म्स लिखिए, विदाउट प्रेजुडिस. अब लिखा है इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट द एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन or under the circumstances from which the court can infer that parties agreed together that evidence of it should not be given. Explanation. Nothing in this section shall be taken to exempt any barrister, pleader, attorney or vakil from giving evidence of any matter which he may be compelled to give evidence under section 126. तो 126 अपना एक अलग टॉपिक है, we'll come to that. अभी आप ये देखिए कि एडमिशन इन सिविल केसेस ये विदाउट प्रेजुडिस स्टेटमेंट्स या कन्वर्जेशंस क्या हैं. ये देखिए, एक चीज़ होती है सिविल केसेस में, उनको हम लोग कहते हैं विदाउट प्रेजुडिस कॉरस्पॉन्डेंस. इस सिविल केसेस में हम लोग बहुत करते हैं. ये प्रैक्टिस साइड के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है. हो सकता है आगे चल के कोई शॉर्ट नोट आ जाए एग्ज़ाम में, पर जनरली अभी तक तो नहीं आया. लेकिन अब एग्ज़ाम का फॉर्मेट और चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो वो चाहते हैं कि और अच्छे स्टूडेंट्स आए वो आर वेल लर्नड इन लॉ. तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. देखिए, विदाउट प्रेजुडिस कॉरस्पॉन्डेंस की रूट एक ही है, इंटरेस्ट रिपब्लिक उट सिट फेरिस लिटियम. मतलब इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट द लिटिगेशन मस्ट कम टू एन एंड. अब लेट मी जस्ट कोट यू लॉर्ड जस्टिस लिंडले इन द केस ऑफ वॉल्कर वर्सेस विशर, एंड जस्ट let me quote you what does he has to say in context of without prejudice. कि without prejudice correspondence का मतलब क्या होता है, कि when a party is proposing a compromise और अपने negotiation या letter में लिख दे without prejudice, then what is meant by those words? Now Lord Justice Lindley said what is meant by the words without prejudice, I think they mean without prejudice to the proposition of the writer of the letter that if the term he proposes are not accepted. If the terms proposed in the letter are accepted, a complete contract is established, and the letter, although written without prejudice, operates to alter the old state of things and to establish a new one. A contract is constituted in respect of which the relief by the way of damages or specific performance would be given. तो लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने बोला कि विदाउट प्रेजुडिस का लिटरल मतलब ये होता है कि अगर पार्टी ने नहीं एक्सेप्ट किया वो जो प्रपोजल है जो वो दे रहा है सेटलमेंट के लिए, देन दैट वुड बी विदाउट प्रेजुडिस टू हिम. तो अब इन्होंने तो ऐसे ही स्टेटमेंट यूज़ कर दिया है, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया होगा. देखिए, मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, सिविल केस है ये, और ये सिविल केस में ही होता है विदाउट प्रेजुडिस कॉरस्पॉन्डेंस, क्रिमिनल केस में नहीं होता. और डिस्प्यूट के दौरान आप सोचते हैं कि यार देखो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आगे चल के पता नहीं कितने साल केस चलेगा, फिर कॉस्ट ऐड होंगे, लिटिगेशन कितना एक्सपेंसिव है, तो आप एक अपने लॉयर के थ्रू लेटर लिखवाते हैं मुझे, और उस पर लिखा होता है विदाउट प्रेजुडिस कॉरस्पॉन्डेंस.
अब उसमें कुछ टर्म्स ऑफ सेटलमेंट हैं, आप कुछ चीज़ें एडमिट करते हैं, आप कहते हैं कि देखिए अब ये हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया, अब इसको रिजॉल्व करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ या करती हूँ कि इतना कंपनसेशन आपको दिया जाएगा और आप इस सूट को विड्रॉ कर लीजिए, एसेट्रा एसेट्रा, कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं। उसमें आपके कुछ एडमिशन हो सकते हैं, उसमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपने सूट के कंटेक्स्ट में दी हो। तो अगर मैं उस लेटर को एज इट इज कोर्ट में प्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा? तो आपने तो अपने खिलाफ इतने एडमिशन कर लिए, आप तो फंस जाओगे, आपके खिलाफ सूट डिक्री हो जाएगा। तभी विदाउट प्रेजुडिस कॉरेस्पॉन्डेंस उसको कहा जाता है कि अगर ये टर्म्स ऑफ सेटलमेंट नहीं एक्सेप्ट किए जाते हैं तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट में, चाहे वो एडमिशन्स को अमाउंट करें, चाहे वो जिस चीज़ को अमाउंट करें, वो कोर्ट में यूज़ नहीं होंगी। ये है एसेंस विदाउट प्रेजुडिस का। उसी सेंस में जस्टिस लिंडले भी बात कर रहे हैं दैट इट इज़ विदाउट प्रेजुडिस। ठीक है, प्रेजुडिस किसको? आपके केस को। इट विल नॉट प्रेजुडिस यू। और क्यों इसको एक मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है? क्योंकि स्टेट का इंटरेस्ट क्या है कि लिटिगेशन कम से कम हो, और लिटिगेशन ज़्यादा होगा तो स्टेट ओवरबर्डन्ड होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी कि अगर सेटलमेंट के टर्म्स के लिए इन्वाइट किया जाता है तो वो विदाउट प्रेजुडिस कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। विदाउट प्रेजुडिस टू वूम? टू योर केस। ठीक है, अब विदाउट प्रेजुडिस रूल के दो रिक्वायरमेंट होते हैं। पहला, दैट द पार्टीज आर जेन्युइनली अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट विच इज ऑलरेडी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ लिटिगेशन। ये पहला रूल है। और विल बिकम लिटिगियस इफ द रेजोल्यूशन इज इफ नॉट रीच्ड। तो या तो पहले ही लिटिगेशन में मैटर पहुंच जाना चाहिए या मैटर लिटिगेशन में पहुंचने वाला होना चाहिए अगर रेजोल्यूशन या हमारे बीच में एमिकल सेटलमेंट नहीं हुआ। सेकेंडली, अब दूसरा रूल, दोनों साथ में एग्जिस्ट करने चाहिए। द पार्टी सीकिंग प्रिविलेज हैज मेड एन एडमिशन वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एज अ पार्ट ऑफ अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू सेटल द डिस्प्यूट। जेन्युइन अटेम्प्ट टू सेटल द डिस्प्यूट इज वेरी मच एसेंशियल। ये दोनों रिक्वायरमेंट विदाउट प्रेजुडिस रूल में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वॉल्कर वर्सेस विशर में सीधे बोल दिया गया दैट द टर्म्स ऑफ द लेटर or the terms of the correspondence of without prejudice to the position of the writer of the letter means that if the proposer does not accept the terms, then that would not prejudice the position of the writer of the letter. दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, there is a dispute between the parties and the parties are genuinely attempting to resolve it. अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊँ, आप किसी भी ट्रीटाइज को उठा लीजिए, कोई भी कमेंट्री पढ़ लीजिए और कोई भी पोजिशन ऑफ लॉ विदाउट कॉरेस्पॉन्डेंस, विदाउट क्या कहते हैं, विदाउट प्रेजुडिस कॉरेस्पॉन्डेंस पे रेफर कर लीजिए, आपको सारे इंग्लिश केसेस लाइन से मिलेंगे, इंडियन केसेस नहीं मिलेंगे। पर मैंने घूम फिर के किसी तरीके से आपके लिए इंडियन केसेस भी गैदर किए हैं, बट इनमें मेजॉरिटी, ये पूरी फील्ड ऑफ लॉ इज इंटायरली गवर्न्ड बाय द जजमेंट्स ऑफ यूके एंड यूएसए, मेजॉरिटी कंटेक्स्ट में। ठीक है, यूके, यूएसए, कनाडा कॉमन लॉ जुरिडिक्शन से ज़्यादातर कवर्ड है, तो इसमें इंग्लिश केसेस बहुत मिलेंगे। जैसे अभी वॉल्कर वर्सेस विशर, रश वर्सेस टॉमकिंस लिमिटेड वर्सेस जीएलसी, देन बिंगली पीएलसी वर्सेस राशिद, ये सारे इंग्लिश केसेस हैं, यूनाइटेड किंगडम के केसेस हैं, इंडिया के केसेस नहीं हैं। लेकिन यही सेम पोजीशन ऑफ लॉ इंडिया में अप्लाई होती है, सेम सेक्शन 23 के कंटेक्स्ट में सेम एज इट इज़ अप्लाई होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टेस्ट इज दैट देयर इज एक्चुअली अ लाइव डिस्प्यूट। फॉर इंस्टेंस, हैज द डिफेंडर इन अ court action admitted liability for a debt or accepted that he had told an employee that she was fired because she was pregnant but in a letter marked without prejudice. तो पहला टेस्ट होता है लाइव डिस्प्यूट का। If so, then depending on the surrounding circumstances, it can be held that the letter cannot be put into evidence if the admissions, either express or implied, that the party is making in that without prejudice correspondence directly relate to the live dispute. ठीक है, ये पॉइंट था ब्रैडफोर्ड एंड बिंगले पीएलसी वर्सेस राशिद का, ये यूनाइटेड किंगडम का केस है। लेकिन मान लीजिए कि अगर पार्टी कोई ऐसा एडमिशन कर देती है विदाउट प्रेजुडिस करस्पॉन्डेंस में जो लाइव डिस्प्यूट से रिलेटेड है ही नहीं, जो आपके डिस्प्यूट से रिलेटेड है ही नहीं। मान लीजिए मेरे आपके बीच में सब्जेक्ट मैटर को लेकर डिस्प्यूट है, विदाउट प्रेजुडिस करस्पॉन्डेंस में मेरे और आपके सब्जेक्ट मैटर से डिस्प्यूट से लेके एडमिशन नहीं, किसी थर्ड मैटर से लेके एडमिशन है, मान लीजिए, वो भी अमंग अदर थिंग्स वो भी है।
अब उस तीसरी पार्टी को पता चल जाता है कि आपने मुझको विदाउट प्रेजुडिस कम्युनिकेशन किया है। अब वो किसी तरीके से लेटर की कॉपी निकाल लेती है, क्योंकि दैट इज बेनिफिशियल फॉर वूम, उस थर्ड पार्टी के लिए। और अगर वो कॉपी निकालने के बाद इफ इट इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड एन एविडेंस, तब यूज किया जा सकता है, क्योंकि अब वो विदाउट प्रेजुडिस कॉरस्पॉन्डेंस उसके कंटेक्स्ट में नहीं है। ये बात याद रखिएगा। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि विदाउट प्रेजुडिस कॉरस्पॉन्डेंस एक लाइव डिस्प्यूट को लेके होनी चाहिए। तो अगर आप मुझको एक कॉरस्पॉन्डेंस दे रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइव डिस्प्यूट दैट एग्जिस्ट बिटवीन अस, और उसी में एक एडमिशन मान लीजिए आप किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ कर दें, जो हो सकता है कंट्रोवर्शियल बात हो, तो अगर वो थर्ड पार्टी को अगर वो एडमिशन मिल जाए और अगर वो किसी सूट में यूज़ करे तो वो कर सकता है या कर सकती है। तो पहली स्टेज क्या है? पार्टीज आर जेन्युइनली अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट विच इज आइदर ऑलरेडी अ सब्जेक्ट मैटर लिटिगेशन और विल बिकम लिटिगियस इफ नो रेजोल्यूशन इज रीच्ड बिटवीन द पार्टीज। एंड सेकेंडली, पार्टी सीकिंग प्रिविलेज हैज मेड एन एडमिशन वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड as a part of a genuine attempt to settle the dispute। तो ये ट्विन रिक्वायरमेंट्स मेट होनी चाहिए। साथ में डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन जेन्युइनली करना चाहिए, हाफ बेक्ड मेथड से नहीं। अगर मान लीजिए विदाउट प्रेजुडिस कॉरस्पॉन्डेंस में आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ब्लैकमेल या धमकी या एक्सटॉर्शन कर दिया है, तो फिर विदाउट प्रेजुडिस रूल से आप कवर्ड नहीं होंगे, वो उसमें नहीं आएगा, because that would not be considered as a genuine attempt to resolve a dispute। blackmail, criminal intimidation without prejudice communication की कैटेगरी में नहीं आता। और एक और केस बता देता हूँ इस पॉइंट पे, वो यूनिलीवर PLC वर्सेस प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड कंपनी। इसका साइटेशन है 1992 वॉल्यूम नंबर 2 ऑल इंग्लिश रिपोर्टर, पेज नंबर 691। अब इस केस में बोला गया था कि parties had a without prejudice meeting where the patent holder allegedly disclosed his intention to bring patent infringement proceedings. The question was whether the patent holder's statement was protected by without prejudice rule. The court said that without prejudice rule is not just confined to admissions, but rather applies to the bona fide without prejudice statements which touch upon the strengths and weaknesses of the party's case or which places a valuation of party's rights। ठीक है, सिर्फ एडमिशंस तक ही नहीं बल्कि हर उस स्टेटमेंट को कवर करेगा which touch upon strength and weakness of the party's case, and said that any conclusion to the contrary would undermine the public policy rationale for the rule, which is currently stronger than ever before, that the party should be encouraged to resolve disputes without litigation. Thus, a right holder would be discouraged from entering into a pre-litigation negotiations with a possible infringer if the latter could commence proceedings on the basis of an assertion of a right made in those negotiations. Similarly, such negotiations would merely serve to trigger litigation if the right holders were entitled to sue for a quite timid relief on the basis of a statement of a commercial intention made by the other party during the negotiation. In the instant case, therefore, without prejudice rule apply to the defendant's statement। अब quite timid क्या होता है? quite timid का लिटरल मतलब होता है बिफोर टाइम और या बिकॉज ही fears। ये एक ऐसा इंजंक्शन, जनरली quite timid इंजंक्शन क्लेम किया जाता है which is to restrain a wrongful act which are threatened or are imminent but I have not yet commenced। ठीक है, तो उसको quite timid action या quite timid injunction भी कहते हैं। It is there to restrain a wrongful act which is threatened or are imminent but have not yet commenced। इन सारी टर्मिनोलॉजीज को लेके अवेयर रहिएगा, प्रैक्टिस में फिर चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं और जनरली फिर आप लोगों से काफ़ी कुछ ज़्यादा जानते हैं when you are understanding these terminologies। अब एक चीज़ और बता दूं कि अगर मान लीजिए लेटर में नहीं लिखा है विदाउट प्रेजुडिस कम्युनिकेशन या कॉरस्पॉन्डेंस है या विदाउट प्रेजुडिस डॉकेट है, तो क्या ये रूल नहीं अप्लाई करेगा? द आंसर इज़ कि वो रूल तब भी अप्लाई करेगा अगर पूरा कंटेक्स्ट और जो लेटर का कंटेक्स्ट है और सारी चीज़ों को देखने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि पूरा जो एफर्ट था पार्टी का वो एक विदाउट प्रेजुडिस कम्युनिकेशन करना था। तो इट इज़ द सब्सटेंस of the correspondence, not the form of the terminologies used that matters to the court। ये भी याद रखिएगा और ध्यान रखिए, एक पार्टी यूनिलैटरली प्रिविलेज वेव नहीं कर सकती कि सीधे कह दे कि नहीं now I do not agree with your without prejudice correspondence, so now I will use this admission in the court। Unilaterally
you cannot waive the privilege of without prejudice correspondence. ये दोनों पार्टी जब agree करती हैं together, only then you can waive the privilege. Both parties have to agree. And since the underlying rationale of without prejudice rule is the agreement of the parties, then this very same rule on the matters of logical construction could also be varied by an agreement. अब एक और चीज़ समझा दूँ. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कम्युनिकेशंस के दौरान, जब अब इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में और बहुत अच्छे लॉयर्स की भी प्रैक्टिसेस देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो विदाउट प्रेजुडिस के साथ साथ एक और लाइन लिखते हैं, विदाउट प्रेजुडिस सेव एज टू कॉस्ट. इस लाइन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशंस आर प्रिविलेज्ड एंड कैन नॉट बी डिस्क्लोज टू द कोर्ट एक्सेप्ट इन द रिलेशन इन द क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट. सिर्फ कॉस्ट के क्वेश्चंस में ही डिस्क्लोजर होगा, लेकिन कम्युनिकेशंस जितने भी हो रहे हैं इस रूल के अंदर वो नहीं डिस्क्लोज होंगे. तो इससे आपको दो चीज़ों का बेनिफिट मिल जाता है. क्या कि अगर मान लीजिए आपके टर्म्स एक्सेप्ट नहीं किए जाते, तो वो जो कॉरस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशंस में जितना पैसा आपका खर्च हुआ वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. तो उस पर्पज़ के लिए कोर्ट उस कॉरस्पॉन्डेंस को कॉस्ट के पर्पज़ के लिए रेलेवेंट मान सकता है. ठीक है. तो जो हेल्दी प्रैक्टिस है वो ये है कि हमेशा उस पर लिखा जाता है विदाउट प्रेजुडिस सेव एज टू कॉस्ट, कि कॉस्ट के पर्पज़ को लेके ही कोर्ट इसको देखेगा और किसी चीज़ को लेके या एडमिशंस को लेके या स्टेटमेंट्स या इन्फेरेंसेस को लेके कोर्ट विल नॉट बॉदर अबाउट इट. ठीक है. इसका रैशनल बस इतना है कि अ पार्टी में नॉट वांट अ कोर्ट टू नो अबाउट द कंसेशन इट मेड अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द केस ड्यूरिंग द डिस्प्यूट और ड्यूरिंग द करस्पॉन्डेंस ऑफ विदाउट प्रेजुडिस कम्युनिकेशन, बट इट वांट्स द कोर्ट टू नो दैट इट डिड मेक अ कंसेशन इन ट्राइंग टू सेटल द डिस्प्यूट एंड दैट कंसेशन मे बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन एज टू हू शुड पे द कॉस्ट. ऐसा भी हो सकता है कि वो कंसेशन उस पॉइंट पे रेलेवेंट हो कि कॉस्ट किसको देना पड़ेगा. तो इन पर्पस के लिए कोर्ट उस कॉरस्पॉन्डेंस को देख सकता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग की कॉस्ट की लाइबिलिटी किसके सर पे जानी चाहिए प्राइमरली, पर उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए नहीं देखेगा. अब मैं इंडियन केसेस की बात कर लेता हूँ. ये है शिवचरण दास वर्सेस गुलाब चंद छोटेलाल. ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है. अब यहाँ पे भी वही बात बोली गई, वेयर negotiations आर बीइंग कंडक्टेड विद अ व्यू टू settlement, it should be held that these negotiations are be conducted without prejudice. In such circumstances, it is not open for one of the party to give evidence of an admission made by another. If the negotiations are a result in a settlement, each side must give away a certain amount. If one of the party offers to take something less than what he later claims he is legally entitled to, such offer must not be used against him. Otherwise, persons could not make offers during negotiations with a view to make settlement. सिमिलरली पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का भी जजमेंट है, सुरजीत कौर वर्सेस गुरचरण सिंह. इसमें बोला गया था, अ परयूजल ऑफ सेक्शन 23 वुड शो दैट इफ एन एडमिशन इज मेड अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट द एविडेंस रिगार्डिंग इट शुड नॉट बी गिवन अंडर any circumstance from which the court could infer that the parties has agreed that the evidence regarding it would not be given, then such an admission would not be relevant. In case parties were trying to effect a compromise and during the interval the said letter was written by husband, it may be stated that the husband has frankly admitted that he did write the letter, but he claimed privilege regarding the same on the ground that it was written when the talks of a compromise were going on between the parties. It appears from the circumstances of the case that he had written this letter perhaps at the instance of the wife, because she might be ready to go back to the husband, but her father may not be giving her permission to do so. And it is quite possible that he wrote the letter just to prevail her up, her father not desiring to send her back. Equally probable is that the father might have asked the husband to write such a letter so that he could show it to his daughter and on that basis persuade her to back after telling her that the husband has admitted his fault and apologized for the same. In any case, this letter was written during the period when the talks of compromise were going on. ये operative part है, इस पे ध्यान दीजिएगा. This inference is drawn by the learned judge from all the circumstances under which the letter was written at the time when the parties has agreed that no evidence would be given regarding his. That being so, the case is covered by the condition laid down in section 23 of the Indian Evidence Act. अब विदाउट प्रेजुडिस कम्युनिकेशन कब नहीं यूज़ किए जा सकते? वो तब नहीं यूज़ किए जा सकते when parties are under a discussion about something which is not in dispute,
और इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डिस्प्यूट एट ऑल. ठीक है, लेट अस सपोज एक पार्टी, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में एक डिफेमेशन सूट चल रहा है, आप विदाउट प्रेजुडिस कॉरेस्पॉन्डेंस में किसी थर्ड पार्टी को लेके बात करते हैं कि मैंने उस थर्ड पार्टी को अपनी कंपनी से इसलिए फायर कर दिया क्योंकि मुझे उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी, या मुझे कोई भी ऐसा बात बोल दी जो एक ग्राउंड बनता है सिविल लायबिलिटी का, तो वो थर्ड पार्टी उसको यूज़ कर सकती है क्योंकि हमारे और आपके कन्वर्सेशन में वो बात रेलिवेंट नहीं है, एंड नाइदर इट इज़ इन रेफरेंस टू आर डिस्प्यूट. ये बात याद रखिएगा. दूसरी बात, कमर्शियल नेगोशिएशंस को विदाउट प्रेजुडिस नहीं कहा जाता. अगर आप कमर्शियल साइड पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कमर्शियल सूट्स या कमर्शियल आर्बिट्रेशन की साइड पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि कमर्शियल नेगोशिएशंस को विदाउट प्रेजुडिस नहीं कहा जाता, बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट. दीज टाइप्स ऑफ नेगोशिएशंस को बोला जाता है दे आर कॉन्फिडेंशियल और दे कैन बी डन ऑन अ कमर्शियल एंड कॉन्फिडेंस बेसिस. इसका मतलब है कि ये विदाउट प्रेजुडिस रूल का लीगल प्रिविलेज या प्रोटेक्शन नहीं अट्रैक्ट करते. कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी एक चीज़ सिग्नल करती है कि प्राइवेट और जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो पार्टी जो रिसीव कर रही है वो उसे अब्यूज़ नहीं करेगी. वेयर एज द फ्रेज विदाउट प्रेजुडिस हैज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल मीनिंग इन रिलेशन टू एडमिशन और कंसेशंस इन एन एफर्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट. ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं. ठीक है, तो आप चाहें तो इस पर एक शॉर्ट नोट के टाइप में अपनी मेंटालिटी बना सकते हैं. अब इसमें क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल केसेस ही हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा नहीं जाता, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत एसेंशियल है. ये सिंगल हैंडेडली वैसी चीज़ें अगर आप आर्बिट्रेशन साइड पे या सिविल साइड पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को लेके अवेयर होना ही होना होता है. अगर आप इन चीज़ को लेके अवेयर नहीं तो आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते. यू विल नेवर बी एबल टू प्रैक्टिस ऑन दैट रिकॉर्ड इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. ये तो प्रिलिमिनरी लेवल की चीज़ें हैं, है ना. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस. अगर आप जुडिशियल एस्पायरेंट भी हैं तो भी इसे समझें जिससे आपकी नॉलेज का स्कोप है वो और एनहेंस हो. ठीक है, अब ये है कि आपको उस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं. एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए आपको एडमिशन्स और बेयर एक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन जिनका गोल प्रैक्टिस है उनके लिए तो वो सारी चीज़ें हैं ही और ये भी हैं. ठीक है, उनको डबल वैमी लगेगी. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कन्फेशन. हमारा एडमिशन का पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं.